गाइस अभी ना हम लोग सुबह सुबह रोटियां लेने जा रहे थे एंड व्हेन आई केम टू सिट इन द कार दिस इज व्हाट आई सॉ। जी गाड़ी का जो टायर है वो फ्लैट हो चुका है और अब मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मैंने अभी यूट्यूब पे एक वीडियो देखी है स्टेप बाय स्टेप टायर चेंज करने की। So I'm gonna try that and let's see how far can I go and you know how far can I achieve. Fingers crossed again, but let's change the flat tire now. सबसे पहले तो I think I need to take out the spare tire, जिसको extra tire कहते हैं, स्टेफनी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। मेरी वाटर बॉटल्स हैं जो मैं रखती हूँ गाड़ी में हमेशा। आई डोंट नो मेरे पास क्या क्या सामान है। ये पड़ी हुई है पूरी किट, सो आई हैव टू टेक दिस आउट। ओके लेट्स डू दैट। टायर निकालने से पहले मैंने YouTube में एक दो वीडियोस देख ली थी कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं टायर को चेंज करने के लिए, और मुझे ये सब मिलेगा कहाँ से। जहाँ स्पेयर टायर था उसी के साथ पूरी किट भी मौजूद थी। ये जो टायर के साथ एक स्क्रू लगा है इसको आपको खोलना पड़ेगा टू टेक आउट द टायर। फाइनली लेट्स टेक दिस टायर आउट एज वेल। अब बारी है इन स्क्रूज को खोलने की ताकि जो पंक्चर टायर है वो निकल आ सके। बट आई स्वेयर मैंने इतनी कोशिश की, ऐसा लग रहा था जैसे ये परमानेंटली लॉक हुए हुए हैं। ट्राइड अ लॉट टू ओपन इट गाइज, बट गेस व्हाट, नथिंग वर्कड। Guys, unfortunately I couldn't do it even though I tried a lot, but the problem is कि मेरा weight नहीं है इतना। even मैं उसके ऊपर पूरा खड़ी हो गई, like screws नहीं खुल रहे मुझसे and it's going anti clockwise, but वो हो ही नहीं रहा है। I tried a lot but it's not working, so I have to call roadside assistance I guess। जी भाई, तो roadside assistance आ गई है। they are actually going to repair my car। Finally, road assistance is here. He offered me to fix my punctured tire as well. So I had to pay him $25 extra. And after fixing, he put the same tire back on my car. Yay. Now that was an experience, a bit traumatizing experience, but I think you learn through it. But one thing that I've noticed is that a lot of people like me hesitate to take help from others. बट मुझे लगता है कि जब आपको चीज़ें नहीं आती और आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आई थिंक हेल्प लेना बुरी बात नहीं। अब हेल्प की बात हो ही रही है तो लेट मी शेयर समथिंग अबाउट Cambly। Cambly is basically an app which gives you one-on-one interaction with your native English speakers or tutors from USA, Canada, UK, etc. It is useful for people who can read, write English, but they might have issues when it comes to speaking English confidently. You have the option to choose from any course like Business English, IELTS, Personality Development, etc. One thing that I would definitely like to mention is that tutors on Cambly are very friendly and very supportive. Especially, they will help you improve on your weak areas without any judgment. Cambly is accessible through their website and also through their app on your phone. It's quite simple. Just sign up with them and find the tutor you want to learn from. I'm also about to call Gemma, my tutor, for the first lesson that I'm taking from Cambly. Hello. Hi, Gemma. Hi. You know, this is my first time. This is my first time, so I wanted to see how it goes. So yeah. Well, welcome to Cambly. And where in Australia are you? I'm in Melbourne as well. Okay. Yes. Right. I've had a personal experience with Cambly and I can assure you guys that you will definitely learn a lot through Cambly. Now you can use my discount code to get 25% off any 3 months plan. To learn more about Cambly, you can go through my description box below with all the further details to get onto Cambly app. Hi guys, morning. मैं आज finally अपनी कोविड वैक्सीन के लिए जा रही हूँ। यहाँ पे अब ऑस्ट्रेलिया में हर स्टेट में काफ़ी ज़्यादा वैक्सीनेशंस ओपन हो चुकी हैं और दिस विल बी माई फर्स्ट डोज ऑफ फाइजर। So yeah, I thought I'll quickly show you guys के experience कैसा है। I don't know वहाँ पे मुझे recording करने देंगे कि नहीं, and I don't have anybody else who can record for me, so I'll see how it goes, but yeah,
I'm gonna drive now. I can't use phone while I'm driving, so I'll see you guys at the vaccination hub. तो मैंने अभी ना गाड़ी पार्क कर लिया है इधर पीछे और अब हम वॉक कर रहे हैं टुवर्ड्स दी वैक्सीनेशन हब. इन्होंने हमसे दरवाजे पे यही पूछा था कि हम कोई रेड जोन से तो नहीं आए, बट दैट्स ऑल, अदरवाइज इट वाज ऑल क्लियर एंड इट्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड. ज़्यादा रश भी नहीं है, बहुत ज़्यादा रश नहीं है, पार्किंग आराम से मिल गई. एंड नाउ वी हैव टू क्यू अप फॉर आवर अपॉइंटमेंट. क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट थी तो ऑफ कोर्स मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ मुझे लग रहा है. आई डोंट नो वो मुझे जल्दी लगा देंगे या नहीं लगाएंगे, बट लेट्स सी. आप लोग को दिख ही रहा होगा, ये है एंट्रेंस, वहाँ पे हमें क्यू होना है. सो लेट्स सी. ये देखिए लाइन तो लंबी थी बट इतना टाइम नहीं लगा लाइन में खड़े होकर. इट वॉज मूविंग क्वाइट फास्ट. बट एक अजीब सी फीलिंग थी कोविड वैक्सीनेशन हब में. सबके मुंह पर मास्क देखकर और इस माहौल को देखकर थोड़ा सा वियर्ड सा लगा, बट एक खुशी भी थी कि फाइनली इट्स हैपनिंग, वन स्टेप क्लोजर टू बेटर डेज इंशाल्लाह. अभी उन्होंने हमसे सारा हमारा जो आईडी होता है वो सब मांगा है और अब हम लाइन में खड़े हैं ताकि हमें वैक्सीनेशन लग सके. आप देख सकते हैं पीछे क्यूबिकल्स बने हुए हैं जिसके अंदर जाके हमारी वैक्सीनेशन होगी. ठीक है, ये हैं वो क्यूबिकल्स जहां वन पर्सन कुड गो एट वन टाइम. और एस्ट्रा एंड फाइजर की जो लाइंस थी वो दोनों सेपरेट थी. इट वाज प्रीटी मच ऑर्गेनाइज्ड. And I'm sitting outside my cubicle now waiting for my turn to get vaccinated. हमारी कोविड वैक्सीन हो चुकी है और अब हम यहाँ बैठे हैं 15 मिनट्स के लिए बिकॉज दे ऑलवेज से कि 15 मिनट आप रेस्ट करें ताकि कोई रिएक्शन या कुछ हो तो पता चल सके. सो या अभी हम 15 मिनट के लिए वेट कर रहे हैं. Finally, I got my first dose of COVID vaccination. Now I'm heading back to home. And yeah, quite excited actually. Allah ka shukr hai, ye bhi ek step hai closer to being able to travel around the world to go meet my family. So yeah, happy to get it done. Hi guys, आज Father's Day है ऑस्ट्रेलिया में and I wish happy Father's Day to all the fathers and all the single moms who are doing all the efforts alone to raise their kids. आज मैं अपने आप को Father's Day wish कर रही हूँ, so I thought I'll quickly make some yummy food. I'm making biryani and साथ ही में मैं बना रही हूँ national का Delhi nihari. I'm gonna use my instant pot to make this nihari. अच्छा, जो बिरयानी की रेसिपी है आई एम यूजिंग द सेम ओल्ड रेसिपी जो मेरी यूट्यूब चैनल पे लगी हुई है. मैं एक्चुअली डब्बे वाली रेसिपी ही यूज़ करूँगी. द ओनली डिफरेंस इज़ दैट आई एम गोइंग टू यूज़ माई इंस्टेंट पॉट फॉर दिस बिकॉज गोश्त को गलाना बहुत लंबा प्रोसीजर है. आई कांट टेक दैट, सो आई थिंक आई एम गोना यूज़ माई इंस्टेंट पॉट. बिरयानी एंड निहारी की तैयारी हो रही है. आई एम ऑल्सो कुकिंग दीज 2 डिशेज़ बिकॉज मेरी कुछ फ्रेंड्स के बर्तन पड़े हुए थे मेरे पास, तो सोचा कि सबको खाना भेज दूँ इस लॉकडाउन में एंड यू नो मेक देयर डे. निहारी मसाला मिक्स कर रही हूँ गोश्त के साथ ताकि इसको प्रेशर कुकर कर सकूँ. बाकी इस निहारी का रंग बहुत ही अच्छा आता है और साथ ही में बिरयानी का मसाला भी बन रहा है. लुक्स लाइक लाइफ इज़ गुड अल्हम्दुलिल्लाह. सो गाइज, आज का कोई प्लान नहीं था मेरे पास, बट आज कोई कुकिंग नहीं करनी क्योंकि मेरे पास बिरयानी भी पड़ी हुई है, मेरे पास निहारी भी पड़ी हुई है. और मैंने फिर सोचा कि आज का टाइम यूटिलाइज करते हैं कुछ प्रोडक्टिव करके. सो टुडे आई एम एक्चुअली सिटिंग इन माई किचन एंड यू गाइज कैन टेल मैं किचन के सिंक के बिल्कुल नीचे बैठी हूँ क्योंकि मेरा प्लान है जो पैंट्री होती है किचन सिंक के नीचे जिसमें आप किचन टॉयलेटरीज डालते हैं, वॉशिंग लिक्विड्स, यू नो, हैंड वॉशेज एंड एवरीथिंग. सो आई एम एक्चुअली थिंकिंग टू ऑर्गेनाइज दिस लिटिल मेस दैट आई हैव हियर. मैं इस घर में जब मूव हुई थी ना, मैंने कुछ ज़्यादा ऑर्गेनाइजिंग नहीं की थी क्योंकि ऑफ कोर्स हर चीज़ का एक टाइम आता है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं, आप एक साथ सब नहीं कर सकते, आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं. सो आई एम थिंकिंग टू ऑर्गेनाइज माई पैंट्री अंडर द सिंक. I do not have a lot of organizing storage boxes. मैंने actually Kmart से ये 4 ट्रेज हैं, बास्केट्स हैं, इनको क्या कहेंगे, स्टोरेज बास्केट्स ही कहेंगे बट प्लास्टिक की है. ये मैंने ऑर्डर की थी
आई थिंक ये इनफ होंगी, क्योंकि इसके अंदर जो है मैं नॉर्मली अपना क्लीनिंग स्टफ रखती हूँ, बैग्स रखती हूँ, प्लास्टिक बैग्स रखती हूँ, और किचन की जो यूजिंग टॉयलेटरीज होती हैं, जैसे वॉशिंग लिक्विड हो गया है और हैंड वॉश हो गया, इस तरह की चीजें पड़ी हुई है नीचे. सो आई थिंक दीज 4 बॉक्सेस शुड बी इनफ. अगर नहीं आए तो एटलीस्ट मैं क्लीन कर लूंगी इसको, क्योंकि अंदर बहुत मेस है. I know you guys want to see it, right? So let's go. I'll show you guys what I'm talking about. Let's go. So now you guys will see how this mess actually looks like. This is really bad. I think I really need to organize this, क्योंकि बहुत गंदा लग रहा है. अच्छा, बिकॉज ये इतना सारा मेसी है तो समटाइम्स व्हेन यू गोइंग फॉर ग्रोसरी ना, आपको एक्चुअली भूल जाता है टू चेक दिस सेक्शन, एंड समटाइम्स यू आर आउट ऑफ टॉयलेटरीज एंड यू डोंट रियलाइज कि क्या आपका ख़त्म हो गया है, व्हाट थिंग्स यू नीड. So actually keeping these things organized and cleans actually give you an idea that you know what things are finishing, what you have in excess and what you need to buy. So I think मुझे पहले इन सब चीज़ों को बाहर निकालना पड़ेगा, इन बास्केट्स में ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ेगा, एंड आई विल हैव टू क्लीन दिस पैंट्री एज वेल, बिकॉज मैंने इसको सिर्फ एक ही दफ़ा क्लीन किया था जब मैं इस घर में आई थी, उसके बाद मैंने कभी हाथ नहीं लगाया. सो आई थिंक लेट्स डू दिस, लेट्स क्लीन दिस, एंड आई होप इट लुक्स क्लीनर देन दिस बिकॉज इट्स रियली बैड एट द मोमेंट. लाइक आई सेड, सबसे पहले इन चीज़ों को बाहर निकालना है मुझे. उसके बाद ये जो पैंट्री स्पेस है, आई वॉन्ट टू क्लीन इट विथ ऑल पर्पज़ क्लीनर एंड देन ऑर्गेनाइज इट. Now it's time to organize these things finally in each basket. I'm keeping all the cleaning products together. Jab se I moved into this apartment, never got a chance to clean or organize these cabinets. But finally, it's happening and it's making a lot of sense. And I think now it looks easily manageable as well. And there you go, guys, the final look. I hope you enjoyed this vlog. Don't forget to like and subscribe my channel. See you soon with another fun video. Bye, guys.